अकॉर्डिंग टू लेंथ द न्यूरॉन आर गोल्जी टाइप वन जो लॉन्ग मिलेंगे, गोल्जी टाइप टू शॉर्ट मिलेगा एक्सोन इसमें आपको. You can see the diagram. How they synapse to each other. डेंड्राइट्स हैं, ये तो पता है, ये तो शायद पता ही होगा आपको. डेंड्राइट्स, एक्सोन. ये दिस आर द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एज यू नो वेरी वेल. दिस आर द जो बात की थी अपन ने, मैंने, है ना, एस्टाइल कोलिन वगैरह है ना, साइनेप्टिक लेफ्ट वगैरह. नाउ व्हाट इज अ न्यूरोग्लियल सेल? नाउ व्हाट इज न्यूरोग्लियल सेल? The non-excitable supporting cells of nervous system, in which you have Schwann cell, as you know very well, oligodendrites, microglial, macroglial, astrocyte, ependymal cell, satellite cell, and glioblast. So write down the name, neuroglial cell. These are the non-excitable supporting cells of nervous system. This is not long, it is non. It's a non-excitable, non, not long, it's a non, non, non. ठीक है, तो चलो इस पे बात करते हैं अपन पहले. देखो, श्वान सेल एज यू नो वेरी वेल, एलिगोडेंड्राइट्स जो माइलिन शीथ में फॉर्मेशन में आएगी. माइक्रोग्लियल सेल है, मैक्रोग्लियल सेल क्या है पता है किसी को? स्टेम सेल्स, यस, दिस स्टेम सेल्स. व्हाट इज एस्ट्रोसाइट्स? ब्रेन बैरियर. देखो, इसमें दो तरह के होते हैं एस्ट्रोसाइट, प्रोटोप्लाज्मिक और फाइब्रस. जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो दो तरह के हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एंड फाइब्रस. दो तरह के एस्ट्रोसाइट्स हैं आपके, जिसमें से जो प्रोटोप्लाज्मिक है विच आर इन रोल ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर. वो कहाँ होंगे? आपके एंडोथेलियम की लेयर पर. आपके जो ब्लड वेसल्स हैं आपके सीएनएस में, जितने भी आपके ब्लड वेसल्स है, उनकी जो लेमिना है, जो ल्यूमन है, उसके वहाँ मिलेगा फुट प्लेट ऑफ एस्ट्रोसाइट्स. ठीक है, तो बेसिकली दीज आर टेक पार्ट इन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर. जिस तरह से देखो, आपने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा है ऑल ओवर द बॉडी, बट ब्रेन में नहीं है. तो ब्रेन में वहाँ पर ये एक बेसिक देना चाहिए. जो लिम्फेटिक सिस्टम है आपका बॉडी के अंदर, जो मैंने बताया था पहले, कोस टाइप ऑफ ड्रेनेजिंग सिस्टम है ना, बताया था ना. तो उसी तरह से ब्रेन के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है आपके. तो वहाँ पर क्या है, ये एस्ट्रोसाइट्स जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर, जो एबनॉर्मल, जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको पास नहीं होने देते हैं ब्रेन के अंदर, है ना. बट कुछ सब्सटेंस जो है वो इसको भी जो है वो पास कर जाते हैं विथ एस्ट्रोसाइट्स. नाउ व्हाट इज एपेंडेमल सेल? जस्ट लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स. आपने नाम सुना ना, सीएसएफ क्या होता है? तो cerebrospinal fluid is formed and secreted by this ependymal cell. So write down, ependymal cell is for secretion and formation of CSF in ventricular system of brain.
Ependymal cells are responsible for formation and secretion of CSF in ventricular system of brain. Now, satellite and glioblast again found in a CNS, supporting cell. ठीक है, तो दो चीज़ काम करी, एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल. ये पता ही होगा, रिफ्लक्स आर्क तो पता ही है सबको, है ना. ये भी पता ही है आपको शायद. Now this peripheral nerve, the spinal nerve 31 pairs, radial ulnar covering of nerve. You can see the spinal nerves C1 to C8, then T1 to T12, L1 to L5, S1, S2, S3, S4, and last one is coccygeal. Now this is the basic diagram of a nerve. You can see here epineurium, the outer covering, which covers the whole muscles fiber. Then perineurium is a covering of bundle of muscle fiber, fasciculi, and each muscles fibers is covered by endoneurium. Again, these are again supporting fibers of the nerve. ये बताइए आपको माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स. Then the classification of peripheral nervous fiber according to their functions and then size and shape and conduction. Now regarding about sympathetic and parasympathetic, write down. Now what are doing the parasympathetic nervous system? Stimulate the flow of saliva, slow the heartbeat, constrict the bronchiole, stimulate the peristalsis movement of the gut as well as secretion, and the stimulation release the bile from the liver and contraction of bladder. In case of sympathetic, dilate pupil, inhibit the flow of saliva, accelerate the heartbeat, dilate the bronchiole, inhibit the peristaltic movement and secretion of intestine. Conversion of glycogen into glucose, secretion of adrenaline, as you know very well. Fear, fight, पढ़ाई है ना अपने. तो एड्रेनलिन का सिक्रेशन सिंपैथेटिक करती है, जो कब करती है? फियर, फाइट, फ्लाइट पढ़ा था अपन 9th, 11th, 12th में. इनहिबिट द ब्लैडर कंस्ट्रक्शन. इसमें तो है. किसको? पैरासिम्पैथेटिक इज बेसिकली क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो. क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो. और सिंपैथेटिक इज थोरिको-लंबर आउटफ्लो. कहाँ से आएगी पैरासिम्पैथेटिक? कहाँ से आएगी? सर्वाइकल एंड लंबर से आएगी. तो उसको बोला आपने क्रेनियो-लंबर आउटफ्लो. यस. और लंबर थोरेसिक्स एंड जो सैक्रल है वो आपका आएगा सिंपैथेटिक में, दूसरा नाम है. हाँ, कॉक्सिस भी आएगा उसके अंदर. तो बेसिकली जो पैरासिम्पैथेटिक इज ऑल्सो नोन एज क्रेनियो लंबर आउटफ्लो. राइट डाउन. पैरासिम्पैथेटिक यहाँ लिखा है ना, वहाँ लिखो ऊपर आप क्रेनियो लंबर आउटफ्लो, एंड सिंपैथेटिक में लिखे हैं आप लंबर आउटफ्लो.
और उसमें लिखें आप थोरेको सैक्रल आउटफ्लो, सिंपैथेटिक में थोरेको सैक्रल आउटफ्लो। कॉग्निटिव का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। बेसिकली ये दोनों जो चीज़ें हैं वो उसमें देखो, पैरासिम्पैथेटिक क्या करती है, हमेशा इनिबिट करती है बॉडी को, कि नॉर्मलाइज करेगी। और सिंपैथेटिक क्या करेगी, उसको ओवरफ्लो करेगी, उसको बॉडी को, है ना। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ ध्यान रखना है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक में सारी चीज़ें क्या होगी, आपकी नॉर्मलाइज होगी, इनिबिट होगी। और एग्जिबिट किस में होगी, सिंपैथेटिक में। तो एक बेसिक कंसेप्ट रहना, पैरासिम्पैथेटिक सब चीज़ को नॉर्मलाइज करेगा आपकी बॉडी को, सिंपैथेटिक क्या करेगा, उसको ओवरफ्लो या एग्जिबिट करेगा उसको। तो ये बेसिक फंडा याद रखना, इनमें ये जो डिफरेंस है। क्या टाइम हुआ, टाइम क्या हुआ? चलो अभी डायग्राम बनाते हैं अपन न्यूरोग्लियल सेल का।
दिख रहा है सबको? स्लाइड दिख रही सबको? क्या मैं मिटाऊँ इन सबको? डायग्राम बना लिए सर? डायग्राम बना लिए? हाँ, एक और चीज़ रखना है कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है हमेशा? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा और सिंपैथेटिक क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये भी एक बेसिक फंडा है जिसको ध्यान रखना है ना? सिंपैथेटिक इंक्रीज द हार्ट रेट एंड पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज द हार्ट रेट। ये भी चाहो तो लिख लो आप कि इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड लो द ब्लड प्रेशर पैरासिम्पैथेटिक। These are the question asked in your just why in physiology. कौन सा? ये वाला? हाँ, ये सिंपैथेटिक चेन से बनता है आपका। सिंपैथेटिक चेन का भी इफेक्ट जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे रहता है। जैसे यहाँ पर स्टमक पे रहेगा, चेन एड्रिनल ग्लैंड पे रहेगा, ठीक है, और ब्लैडर पे रहेगा। पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे जो है वो सोलर प्लेक्सस मतलब कि ज़्यादा सिंपैथेटिक चेन प्लेक्सेस हैं जो ज़्यादा सिक्रेट ना हो। देखो, ये इनिबिट कर रहा है तो बिल्कुल इनिबिट नहीं कर रहा है, तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए, है ना? उसके लिए जैसे यहाँ पर जैसे इनिबिट द ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, तो कंप्लीटली ना हो पाए उसके लिए कंट्रोल के लिए जो है वो सिंपैथेटिक चेन का प्लेक्सेस है। किसको? कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है। तो इनिबिट वो कर रहा है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है कि ज़्यादा इनिबिट नहीं कर रहा है। वो ओवर कर रहा है, मैं वो बात मान रहा हूँ, ओवर कर रहा है, लेकिन ज़्यादा ओवर ना हो। तो उसके बाद कंट्रोल होना चाहिए कोई, तो वो उसको उसको कंट्रोल कर रहा है कि जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। Now again the effect on the system. Parasympathetic constrict the pupil where the sympathetic is dilate. Stimulate the T-reg gland, that is lacrimal gland. T-reg gland कौन सी है? lacrimal gland कहाँ होती है? बताया था मैंने। ये इस जगह है, सुपीरियर लेटरल एस्पेक्ट, इस जगह। यहाँ पर तो लैक्राइमल सिक्रीशन होता है आपका, लैक्राइमल पंक्टा। आप यहाँ से थोड़ा कर देखो, थोड़ा सा सेक लाइक पार्ट मिलेगा आपको, उभरा हुआ, वहाँ से आपका सिक्रीशन होता है उसका, है ना? देन स्टिमुलेट स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ सलाइवरी फ्लो, बड़ी लिया वीक द स्टिमुलेशन सलाइवरी फ्लो, इनिबिट द हार्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव ब्रोंको हो गया। Stimulate the stomach mobility and secretion and stimulation of pancreas, where they inhibit the sympathetic, inhibit the stomach motility and secretion as well as inhibition of pancreas and adrenal. Then in the intestine, the parasympathetic stimulate the intestinal motility and sympathetic inhibit the intestinal motility. हाँ, उसी की बात हो रही है। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ सलाइवा, वही सलाइवा ज़्यादा एक्सक्रीट करेगा, है ना?
कभी कभी आपको कुछ चीज़ देख के उसमें से सलेवा ज़्यादा सीक्रेट होता है, मुंह जैसे बोलते हैं अपन मुंह में पानी आना, है ना, वो चीज़ है. देन अप्लाइड एनाटॉमी, इरिटेशन ऑफ नर्व, डैमेज एंड न्यूरल्जिया. क्या होता है न्यूरल्जिया? न्यूरल्जिया मैंने बताया था वो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया. क्या होता है ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया? बेसिकली इज अ नर्व पेन. न्यूरल्जिया इज नर्व पेन. और वही बात करें अपन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की, तो वो क्या है? फेशियल एक, एक समझते हो ना, एक फेशियल एक, फेशियल पेन, दैट इज ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया. क्योंकि आपकी फेस की नर्व की सेंसरी सप्लाई कौन सी है? ट्राइजेमिनल नर्व, दैट इज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व. बस खत्म. Now regarding the spinal cord, क्या फीचर्स हैं उसके? Now this is the basic diagram of spinal cord, as you know very well. Now you can see the diagram of spinal cord from where the nerves arises, from anterior and posterior root. This one is, you can see there, H-shaped masses in centrally placed in spinal cord is known as white matter, gray matter. And outside the gray matter there is a white matter, and between the gray matter there is a central canal. Now what is the basic structure? There is a anterior median commissure, this one is posterior median commissure. Okay. This one is anterior, this one is lateral, this one is posterior gray horn. This one is anterior, this one is lateral, and this one is posterior commissure. Okay. Now we can see the length of, average length is 45 centimeter of spinal cord. In averaging in female it is about 42 centimeter, or in male it is about 45 centimeter, that is 18 inches. Okay. Is a long cylindrical part of the central nervous system, occupy the upper one-third of the vertebral canal. It begins at the foramen magnum as is continuation of medulla oblongata and usually terminate opposite the intervertebral discs between the L1 and L2 vertebra. In the fetus, the spinal cord extending up to the level of the lower border of S2 vertebra. And the function of spinal cord is transmission and information to and fro between body and brain. And execution of simple reflex arc, जो पढ़ा देखा था अभी आपने, simple reflex arc. Now what are the external features? The spinal cord is cylindrical structure, somewhat flattened anterior and posteriorly, it lower and it tapers into the cone, forming the conus medullaris. ठीक है, लोअर एंड कैसा हो जाएगा आपका? अपर एंड तो कैसा है आपका? समवॉट फ्लैट है, लेकिन लोअर में जगह क्या हो जाएगा? कॉन शेप का बन जाएगा, वो बनाएगा आपका कॉनस मेडुलारिस. द स्पाइनल कॉर्ड गिव्स राइज टू 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. The girth of spinal cord increases considerable in the region given origin to the large nerves of the limb. This enlargement is known as cervical and lumbar swelling, or cervical or lumbar enlargement. This one is cervical and lumbar enlargement, where it gives the nerve to the limb, upper limb and lower limb. In cervical region it gives nerve to the upper limb, or in lumbar region give the lower limb. That's why it is enlarged. Now the spinal cord present the following external features, fissures and sulci, जो बात की थी आपने अभी.
and attachment of spinal root and enlargement of spinal cord. Now you can see the sulci. The anterior aspect of spinal cord possesses a deep median groove called anterior median fissure. This one. On either side of anterior median fissure, it passes anterolateral sulcus. ये वाला. The posterior aspect of spinal cord present a shallow median. This one. ये बताया आपको ये वाला क्या है? पीछे वाले हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड के. फेसिकुलस क्यूनिएटस, फेसिकुलस ग्रेसिलिस नाम सुना होगा आपने. सुना? फेसिलिस. ट्रैक्ट ऑफ गोल एंड बर्डा नाम सुना है? ट्रैक्ट ऑफ गोल एंड बर्डा. चलो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ोगे. ये फिजियोलॉजी का पार्ट है बेसिकली. यहाँ पर ये जो पोस्टीरियर कॉलम है ये पूरा, दिस इज फॉर कैरी द पेन टच टेम्परेचर सेंसेशन फ्रॉम योर बॉडी टू द ब्रेन. कैरी द पेन टच टेम्परेचर सेंसेशन फ्रॉम योर बॉडी. दिस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. योर एंटीरियर लेटरल पार्ट इज फॉर मोटर. जो आप मूवमेंट करते हो आप, तो आपको पता रहता है कि हाँ कि मैं किस पोजीशन में बैठा हूँ, किस पोजीशन में खड़ा हूँ, कौन सा मूवमेंट मुझे करना है. दिस वन इज डन बाय दिस वन, दिस एरिया. एंड ऑल द सेंसेशन कैरिड बाय पोस्टीरियर कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. पेन टच टेम्परेचर, जिसका एक ट्रैक्ट है, जिसे बोला आपने ट्रैक्ट ऑफ गोल, GOL, गोल एंड बर्डा. ये जो अंदर जो ग्रे मैटर है, जो कि आपको दिख रहा है ना अंदर ग्रे मैटर, इज फॉर योर transmission of all kind of impulses. Now the attachment of spinal nerves root, the anterior and posterior root of spinal nerve unite within the intervertebral foramina. अभी आएगा next diagram. The anterior root is formed by 3 to 4 rootlets which emerge along the anterolateral sulcus on the spinal cord. The posterior root is formed by several rootlets which attach to the posterolateral sulcus of spinal cord. And short distance from the cord, a rootless line unit to form a single root. And the anterior posterior root is passes to the appropriate vertebral foramina with where each evaginate durameter की कविंग रहेगी उसके अंदर जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी तब तक. And the ganglia is on posterior root cells. एक मिनट diagram. Now you can see the diagram. This one. This one is anterior root, and this one is posterior root. Unite at form with the, this one is intervertebral foramina. ठीक है. Then it goes to the anterior ramus and posterior ramus. And here the posterior root have a ganglia is known as dorsal root ganglia. नाम सुना है आपने? डोर्सल रूट गैंग्लिया. जहाँ भी आपने लिखा ना सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, वो यहाँ मिलता है डोर्सल रूट गैंग्लिया में. राइट डाउन. डोर्सल रूट गैंग्लिया हैव ए सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन. रूट गैंग्लिया. Now, since the spinal cord is shorter than the vertebral canal, the course of spinal root is in the vertebral canal to reach the appropriate intervertebral foramina varies. जैसा आप बोल रहे हो कि C1 है तो वो C1 से नहीं निकलेगी, वो उसकी थोड़ा सा अपर लेवल पे निकलेगा. समझ में आ नहीं आ रहा है? 31 पेयर से स्पाइनल नर्व है आपकी. जैसे हमने बोला T8, तो T8 नर्व जो है स्पाइनल नर्व है, थोरेसिक नर्व है, वो थोरेसिक वर्टिब्रा T8 के वहाँ से नहीं निकल रही है, उसके अबव लेवल से निकल रही है ना. वो ध्यान रखें आप. कई यही कह रहा है वो, since the spinal cord is shorter than the vertebral canal,
The course of spinal nerve route in the vertebral canal to reach the appropriate level varies. The upper cervical nerve roots passes almost horizontally first. जो आपके cervical nerves हैं वो कैसे हैं? Horizontally हैं. The thoracic nerves root is passed obliquely. वो oblique में निकलेंगे आपकी nerves. Then the lumbar and sacral root is almost vertically, just downward है. तो एक कौन सा horizontal है, एक oblique है, एक downward है. ठीक है, spinal nerves. Then cauda equina is a lash of lumbar, except L1, sacral and coccygeal nerve root around the filum terminalis in the pool of CSF. It is so named because the lower end of the spinal cord along the aforementioned structures resemble the tail of horse. That's why it's known as cauda equina. You can see here. अभी आएगा next diagram. ये क्या है? Spinal segment ठीक है तो. Now you can see here, this one is cauda equina, है ना, horse tail like. कौन? 18 inches and 45 centimeter in male and 42 centimeter in female. What are the other structures present in your body with length of 45? What are the other structures present in your body with length of 45 centimeter? ये बताया था मैंने आपको पहले भी. लिखा ही नहीं होगा आपने, नहीं लिखा? चलो कौन से हैं? काफ़ी लंबा है. बताया था रूल ऑफ 45, रूल ऑफ 25. फर्स्ट सेकंड क्लास में बताया था मैंने, नहीं बताया था? क्यों झूठ बोल रहा है? मैंने बताया था aorta. Aorta is length of 45 centimeter in your body. Then you have femur. Femur, again 45 centimeter. Write down the rule of 45. Femur. Humerus देखती थी. फीमर देख ले, यहाँ से लेके यहाँ तक. नॉर्मल कह रहा हूँ मैं. अब नहीं बोलेगा इसे ये छोटा है तो इसकी तो 45 थोड़ी है, ये लंबा है तो सर उसकी तो 60 है. एवरेज. आयोटा हो गया आपका, जो आयोटा सब हो गया ना, असेंडिंग आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा, एब्डोमिनल आयोटा, चारों मिला के 45 सेंटीमीटर. ठीक है, और कौन सा होगा 45 सेंटीमीटर? ग्रेट है, ग्रेट बोला है. और क्या सुनते हैं? एक नाम सुना होगा, वास्ट डिफरेंस. नाम सुना है? वास्ट डिफरेंस, वो भी 45 सेंटीमीटर. वास्ट डिफरेंस, डिफरेंट या डक्टस डिफरेंसेस, 3 नाम है इसके. एक मसल्स है जो 45 सेंटीमीटर की. कौन सी मसल है? फ्रंट ऑफ थाई की मसल है एक. क्वाड्रिसेप्स तो क्वाड्रिसेप्स है जिसके 4 हेड है. इसके अलावा एक मसल और है जिसको बोलते हैं अपन टेलर मसल. टेलर समझते हो, जो सिलाई करते हैं, उसका नाम, दूसरा नाम टेलर मसल है. जिसका नाम है सार्टोरियस. मसल्स का नाम है सार्टोरियस. अगेन पतली सी मसल्स है आपकी यहाँ जो है ना, ये एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, जहाँ हम बेल्ट लगाते हैं अपन, वहाँ से शुरू होकर मिडिल साइड ऑफ टीबिया में जाके इंसर्ट होती है आपकी. सार्टोरियस एक रिबन लाइक मसल्स है जिसका एक्शन है एब्डक्शन एंड लैटरल रोटेशन ऑफ थाई एट द हिप जॉइंट, as you seen in a sitting position in tailor. That's why it's known as tailor muscle.
Now the cervical enlargement is in between C5 to T1, and lumbar enlargement is L2 to S3. जी लिख लें आप। सर्वाइकल एनालाइज कहाँ किसी बीच में, कहाँ किस सेगमेंट के बीच में, स्पाइनल सेगमेंट। सर्वाइकल इज C5 टू T1, C5, C6, C7, C8 एंड T1, वहाँ वो एनालाइज हो रही है। एंड इन लंबर एनालाइज फ्रॉम L2, 3, 4, 5, S1, S2, S3। स्पाइनल कॉर्ड नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं है, वो परमानेंट एनलार्जमेंट है ये। दिस इज द परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल एंड लंबर। ऐसा कहीं नहीं है कि आप वर्कआउट करोगे और आपके स्पाइनल कॉर्ड एनलार्ज हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। जहाँ ही पढ़ा है तूने गलत पढ़ा है, वो किसी बुक में रिटर्न नहीं है, किसी मेडिकल बुक में कहीं कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप वर्कआउट करोगे तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड एनलार्ज हो जाएगी टेम्परेरी, कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा। There is a permanent enlargement in the cervical region in between C5 to T1, and lumbar enlargement between L2 to S3. This is a permanent enlargement. अभी बताऊंगा, अभी नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे अपन डायग्राम बनाएंगे अपन इन दोनों का। Now you can see the size of gray matter in different region. This one C1 cervical gray matter, this is thoracic gray matter, this one is lumbar gray matter, and this one is sacral gray matter, है ना। तो यहाँ पर अमाउंट जो है वो समवॉट इक्वल है, यहाँ पर लेस है, यहाँ पर समवॉट इंक्रीज है, और यहाँ पर हाईली इंक्रीज है ग्रे मैटर। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। ट्रैक्स पता ही है आपको, स्पाइनल को पता है, ट्रैक्स के बारे में कुछ पता है? ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बंडल ऑफ एक्सोन, हाँ वो तो मान लिया। चलो अभी आपके लेवल का नहीं है ये। बेसिकली ट्रैक्स प्रेजेंटिंग इन द स्पाइनल कॉर्ड, डिसेंडिंग ट्रैक्ट एंड असेंडिंग ट्रैक्ट, ये आप बाद में पढ़ोगे, अभी आपके काम कीजिए, नहीं फिजियोलॉजी में पढ़ोगे इसको आप। दिस इज द diagram is showing the tracks from spinal cord to cerebral cortex, that is cerebrum. Now the effect of coloration, ये दो चीज़ लिख लो आप, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप एंड लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप, ये दो चीज़ लिखो आप, ये जो पता होना चाहिए आपको। दो हेडिंग लगाओ, अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस एंड लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस। अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस एक तरफ लिखो, दूसरे तरफ लिखो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप पैरालिसिस। अपर मोटर में लिखो कि पैरालिसिस क्या मिलेगा आपको, अपोजिट हाफ जो है वो बॉडी जो है वो पैरालाइज होगी। किसमें? अपर मोटर न्यूरॉन में अपोजिट हाफ ऑफ बॉडी इज पैरालाइज। जबकि लोअर में क्या होगा, सेम होगा और सिंगल होगा, पूरी बॉडी पैरालाइज नहीं होगी, उसमें या तो अपर लिम होगा या लोअर लिम होगा। अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी होगा, क्योंकि वो डेक्यूजेशन नहीं हुआ है, क्रॉसिंग ऑफ नर्व फाइबर नहीं हुआ है, तो इंजर्ड होगी तो वो, क्योंकि एक राइट बॉडी जो है वो लेफ्ट को कंट्रोल करती है, और लेफ्ट वाला जो ब्रेन है आपका वो राइट बॉडी कंट्रोल करता है ना, तो वो क्रॉसिंग नहीं हुई, तो उससे पहले अगर नर्व पैरालाइज होगी तो अपोजिट हाफ ही करेगी ना, वो क्रॉस कर रही है। तो इंजर अगर ये क्रॉसिंग से पहले होगी इंजर, तो वो अपोजिट करेगी, क्रॉसिंग के बाद तो सेम साइड करेगी। चलो अपर मोटर न्यूरॉन लिखो कि द ग्रुप ऑफ मसल्स इज पैरालाइज, वेयर ग्रुप ऑफ मसल इज पैरालाइज। अपर मोटर में लिखो ग्रुप ऑफ मसल इज पैरालाइज, एंड लोअर में लिखो आप सिंगल मसल्स इज पैरालाइज।
ठीक है। फिर अपर में लिखो स्पास्टिक पैराप्लेजिया, स्पास्टिक पैरालिसिस। हाँ, इसमें लिखो आप फ्लैसिड, लोअर में लिखो फ्लैसिड पैरालिसिस। ठीक है, तो दोनों में कैसा होगा, इसमें को स्पास्टिक होगा, स्पास्टिक बोले तो इसमें अकड़ जाए, और फ्लैसिड में कैसे, तो बताने का आप स्पास्टिक पैरालिसिस इन अपर मोटर न्यूरॉन एंड फ्लैसिड इज लोअर मोटर न्यूरॉन। ये तो अभी आपके काम की नहीं है। सब एक कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये भी नहीं है। ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम से अभी अभी ब्लड सप्लाई। चलो ओके। Now, what is spina bifida? The condition that refer to a developmental defect of spinal column in which the arch of one or more of the spinal vertebra fail to fuse. It may involve the entire length of the neural tube or restrict to the one area. पूरी पूरी अब न्यूरल ट्यूब जो है वो डिफेक्ट रहेगी तो स्पाइनल कॉर्ड पूरी बार आ जाएगी, या रेस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर है, लंबर में है या थोरेसिक में या सर्वाइकल में। मोस्ट प्रोबेबली जो होती है स्पाइना बाइफिडा इन लंबर रीजन। ठीक है ना, तो ये जो स्पाइन जो होती है वो बाइफिड है, जुड़ती नहीं है। जो पीछे अपन फील करते हैं ना, जो स्पाइन ये वाली, ये स्पाइन क्या है, दो लेमिना से मिल के बनती है। तो वो दो लेमिना अगर फ्यूज नहीं होती है तो वो स्पाइन बाइफिड रह जाती है। तो उसमें से कभी कभी मेनिंजेस बाहर आ सकती है ना, कभी कभी आपकी नर्व्स बाहर आ सकती है, कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड भी आ सकती है। तो बताइए कौन कौन सी कंडीशन है वो। जेनेटिक फैक्टर है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंट्रायूटेरल लाइफ। इसलिए देखा होगा आपने नॉर्मल प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड जरूर देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सी से प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर होगा तो हो सकता है स्पाइन जो है बाइफिट नहीं कर पाए। मेडिकेशंस सच एज एंटी कन्वेंस, कोई मेडिसिन ले रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हो सकती है अभी। कंडीशन सच एज डायबिटीज, ओबेसिटी, फीवर ऑल्सो इंक्रीज द चांसेस ऑफ डेवलपिंग द baby with spina bifida. Now, the spina bifida occulta is an abnormal condition with the vertebra only that is due to the unclosed posterior vertebral arch, जो मैंने वही बताया आपको। You can see here, this is the spina bifida, normal curvature. The normal is straight, यानी ये curvature. It has no symptom, ठीक है। ये मेनिंगोसिल, मेनिंगोमायोसिल, ये दो एक कंडीशन है। ये मेनिंगोसिल जो है वो जहाँ पर स्पाइन बाइफिड हुआ है और मेनिंजेस बाहर निकली है, और मेनिंगोमायोसिल, मेनिंगोमायोसिल जिसमें मेनिंजेस एज वेल एज स्पाइनल कोड भी बाहर निकली है, तो कंडीशन कहलाएगी आपकी ये वाली। ठीक है, बाकी तो आपके काम की चीज़ नहीं है। देखो यू कैन सी दैट ओनली द मेनिंजेस, either the spinal cord, meninges as well as spinal cord. चलो, बाकी आपके काम की चीज़ नहीं है। ये आपके लेवल का नहीं है, ये मैंने 3-4 दिन पहले ही पढ़ाया है MBBS में, बट थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दे दिया आपको, ताकि आपको वहाँ जब आप पढ़ोगे स्पाइनल कोड तो आपको जनरल आइडिया रहेगा एक, है ना। बाकी सारे ये पढ़ोगे, इसका एक्सरे वगैरह सब सारे MBBS के टॉपिक ही सारे ये, ठीक है।
पोस्टीरियर ट्रायंगुलर नेक, पैरालाल टॉन्सिल, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम तो पढ़ा होगा आपने, चलो इसको भी देख लो एक बार। जेनेटिक डिसऑर्डर पता ही है, पढ़ के हैं अपन ऑलरेडी। मोर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम occur around 1 out of 1000. Undecent testicle, weak muscles, slow motor development, delayed in speaking, taller than average height, longer legs and broader hip. Hypogonadism, gynecomastia. चलो ये डायग्नोस ट्रीटमेंट, चलो ये आपके काम की चीज़। ये डाउन सिंड्रोम पता ही होगा। हाँ, एक और ये देख लो, सेरेब्रल पाल्सी। Now you can see here the abnormal birth with cerebral palsy. Now you can see here hemiplegia, diplegia, quadriplegia, ethanoid, dystonic or ataxic. These are the condition present with the cerebral palsy patient. ये various टाइप है, हेमीप्लेजिया हाफ है, डाइप्लेजिया दोनों में है, क्वाड्रिप्लेजिया चारों में है, एथेनोइड चारों अपर लिम्ब लोअर लिम्ब साथ ट्रंक में भी है, इसमें नेक में भी है, और इसमें गेट भी एटेसिक। एथेटोइड देखो क्या है, कांस्टेंट अनकंट्रोल्ड मोशन ऑफ लिम्ब, हेड एंड आईज। अनकंट्रोल, कंट्रोल में नहीं रहेंगे और अपर लिम्ब जो है लोअर लिम्ब हिलते रहेंगे। बाकी जस्ट फॉर योर एक विज़न के लिए दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको मैं, अदरवाइज आपको अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी इतना डिटेल में पढ़ने की। अभी ये जब आपकी न्यूरो एनाटॉमी होगी ना फर्स्ट ईयर में, लास्ट में, तब पढ़ाया जाएगा आपको ये। You can see ataxic gait, जो नॉर्मल जो वॉक है आपकी वो कैसी है, अनस्टडी है, एटेक्सिक है।